Hello, good afternoon, FI students. So yesterday we were discussing about the concept of desertification, then effects of desertification. Today I am going to discuss about the remedies on desertification. Then first point is education. In developing countries, education is incredibly important that needs to be utilized in order to help the people to understand the best way to use the land and that they are farming on. By educating them on the sustainable practice, more land will be saved from becoming desert. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है मीन्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कि यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए कि जो लैंड है या जो ज़मीन है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम आने वाले कुछ सालों में जो अभी डेजर्टिफिकेशन ना हो उसको हम रोक सकते हैं. Then next point is technology advance. In some cases, it is difficult to try and preserve desertification from happening. In those cases, there needs to be research and advancement in the technology that push the limits of we currently advancement could help us find more ways to prevent the issues from becoming epidemics. तो जैसे हम बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी एडवांसेस के सम केसेस में हम बोलते कि जीपीएस से या हम बोलते कि लोग जैसे टेक्नोलॉजीज की एडवांटेजेस बढ़ते जाते हैं टेक्नोलॉजी हम बोलते कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक ब्रिज की तरफ काम करते हैं उसके हिसाब से हम आने वाले कुछ सालों में या उस हम बोलते कि एडवांसमेंट उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं और उसको हम बोलते कि आने वाले जो एपिडेमिक में है एपिडेमिक होते हैं इश्यूज होते हैं उसको हम बचा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कम से कम हम बोलते कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें तो जो ज़मीन हो जो ज़मीन है या लैंड है तो उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं. फिर उसको हम बोलते कि लैंड रिफॉर्म करने के बाद उसकी फर्टिलिटी नहीं जाएगी. देन rehabilitation. That rehabilitation means there are some ways that we can go back and the rehabilitate land that we have already pushed into the desertification. Just we take the some interval of the time and money. By putting these together, we can prevent from becoming even more widespread in the areas that have already affected. Rehabilitation means that we have जैसे हम बोलते कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाए तो हम डेजर्टिफिकेशन से अपने ज़मीन को बचा सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है और मनी भी कंज्यूम होता है. तो जब हम एक साथ ये सब कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें लंबे समय तक दिखाई देता है. आगे बढ़ते हैं. Sustainable practices. There are plenty of sustainable practices that apply to those and may be causing desertification. By adding this we should be doing with the land, we can ensure that we don't turn the entire world into the desert. कि जैसे हम कोई भी जो प्रैक्टिस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे जारी रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड को डेजर्टिफिकेशन से बचा सकते हैं. Then next point is यहाँ पे देखिए uneven food production. Food production was the first element of the food to receive extensive attention from the geographers in the field of cultural geography, particularly in the agricultural geography. तो हम बोलते हैं कि फूड प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है या जो एग्रीकल्चर जियोग्राफी है तो वो जो इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं तो हमें जियोग्राफर से मिलता है. ग्लोबली द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज अनइक्वल कि जैसे हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन उसका जो हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन है या फूड सप्लाई वो कम है. So this is because there are main two components involved in the substance production that are also distributed irregularly. These components are environmental capacity of the area and the human capacity. तो उसके लिए दो components उसके लिए जिम्मेदार है. तो सबसे पहला आता है एक तो environment capacity of the area और दूसरा है human capacity.
Environment capacity is ability to accommodate a particular activity without unacceptable impact. कि जैसे जिस एनवायरनमेंट में जैसा जो फसल लगाए जाते हैं तो उस एनवायरनमेंट को वो असर होना चाहिए. दैट फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर अफेक्टेड. तो एनवायरमेंटल हम जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेट भी आ जाता है, सॉइल टाइप्स भी आ जाते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो भी उसको अफेक्ट करता है. जब हम ह्यूमन कैपेसिटी इन द रिलेशन टू फूड प्रोडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर स्किल विद इन दैट पॉपुलेशन. कि जैसे फूड प्रोडक्शन हमको बढ़ाने के लिए जैसा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जाए वैसे ही एग्रीकल्चर स्किल उसको बढ़ानी चाहिए. इसकी वजह से जितना ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोडक्ट उसके लिए फूड प्रोड्यूस करना चाहिए. व्हेन दीज टू आर at ideal levels, the pattern with the financial capital and the creation of intense agricultural infrastructure is possible. कि जब ये दोनों बातें कि जब हम पॉपुलेशन और जो हम बोलते हैं कि फूड प्रोडक्शन अगर ये दोनों बातें ठीक से हो जाए, इंटरमिंगल हो जाए या उस एक लेवल पे आ जाए तो जो पूरा का जो पूरा हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पॉसिबल सबके लिए इजीली हो जाएगा. The next point is water stress and increase the level of desertification are leading to the loss of arable land. कि जैसे हम बोलते हैं कि पानी की कमी और हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि पानी की कमी की वजह से और डेजर्टिफिकेशन की वजह से जो लैंड होती है या अरेबल लैंड होती है उसको हम कम दिखाई देती है. Agriculture practices use the bulk of our fresh water up to 70% and it is predicted to rise 50 to 100% by 25. कि जैसे हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए या हम बोलते हैं कि अरेबल लैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70% पानी चला जाता है. लेकिन उसको हम जब 2025 तक उसका हम बोलते हैं कि जो लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है. कि फॉर एग्जांपल 50 से लेके 100% तक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की वहाँ पे ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी खेती जब कोई भी हम खेत में जाते हैं तो खेत पूरा हरा भरा कब दिखाई देता है कि उसमें इरिगेशन सिस्टम ठीक हो या पर्टिकुलर जो किसान है उसका नॉलेज या उसने जो अपना नॉलेज या हम बोलते हैं कि उसका प्रैक्टिस ठीक से हो तो खेत हमें हरा भरा दिखाई देता है. One of the most striking example of uneven distribution of the food on the planet is the existence of chronic hunger in some part of the world. कि उसका जो हम बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो कभी कभी हमें क्रोनिक हंगर ये प्रॉब्लम हमको कई जगह पे नज़र आता है कि कुछ लोग भूखे ही मर रहे हैं. कि आगे देखते हैं एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेट सम रीजन्स आर बिकमिंग लेस एंड लेस सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर. कि क्लाइमेट की वजह से या क्लाइमेट में प्रॉब्लम होने की वजह से तो कुछ रीजन में कि फॉर एग्जांपल वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. देन रीजन फॉर अनइक्वल फूड रिसोर्सेज द मैथ जस्ट द मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन डिफर अराउंड द वर्ल्ड. कि जैसे हर एक का जो हम बोलते हैं कि काम करने की जो बोलते हैं मैथडोलॉजी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास थोड़ा टेक्नोलॉजी का काम ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है. बाहर के देशों में जैसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन बनाया जाता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे फूड रिसोर्सेज होते हैं वो भी हर एक जगह अलग अलग दिखाई देते हैं. कि जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे फूड प्रोडक्शन के लिए या फूड प्रोसेसिंग के लिए जगह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पर एज कंपैरिजन टू ब्राज़ील और फिलीपींस की कंपैरिजन में ओनली 1% हम अनाज उगाते हैं या उसका फूड प्रोसेसिंग होता है. देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज ग्रोन. कि उस पर जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज होती हैं या पॉलिसीज होती है वो भी इम्पैक्ट करती हैं और उसके हिसाब से क्लाइमेट भी क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है.
The type of the food produced depend on the relatively availability of the land, labor, capital and fossil fuel. तो जब हम फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका रिलेशन किससे है? एक तो लैंड से है, दूसरा है लेबर वर्क वहाँ पे होना चाहिए, तीसरा है कैपिटल मीन्स मनी होना चाहिए, और चौथा है उसका फॉसिल फ्यूल्स मीन्स उसको हम बोलने मीन्स ये चार पहलू ये आपको जो दिखाई देते हैं, फोर रीजन, देर आर मेन फोर रीजन रिलेटेड टू द फूड प्रोड्यूस. The next point is major sources of the food are as follows. फूड ग्रेन्स में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस है, वीट है और मेज है. मेज मतलब बोले तो जो हम बोलते कि कौन बोले, कौन, कौन मीन्स हम बोलते हैं मेज. तो ये हम्म, तो ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स, तो एनिमल प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ पे मिल्क है, बीफ है, मटन है और नेक्स्ट पॉइंट है फिश. तो ये हमारे मेन फूड रिसोर्सेज हैं. यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ अबव फूड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज वेरी अनइवन. Two examples to prove this uneven production will help you to understand this unique nature of uneven production, which is the main cause of development of international trade in the food product. तो यहाँ पे आपको क्या बताए कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को बनाने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए उनकी जो पॉलिसी होती है वो हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी कम दिखाई देती है. Today, the despite of existence of sufficient food supplies, the goal of feeding everyone in the world cannot be achieved due to the uneven distribution of the food supply. कि फूड सप्लाई करने के लिए जो हम बोलते हैं कि हर एक के पास खाना पहुंचना चाहिए, तो वो फूड सप्लाई वर्ल्ड के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति को हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है. ओवर द 1,000 million people now live in the starvation. कि उसका यहाँ पे देखो आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है या उससे भी ज़्यादा हो शायद, तो 1,000 million people जो अभी भी हंगर से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं. अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड सप्लाईज इज मोर डेवलप इन द कंट्रीज एंड लेस डेवलप इन द कंट्रीज. कि जहाँ पे अभी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो रहा है वो, और जहाँ पे कम डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे हमको ये फूड स्टार्वेशन दिखाई देता है. The next point is uneven distribution of rice in the world. The following world map shows that uneven distribution of rice producing areas in the world. Rice production is mainly concentrated in the tropical countries in South and South Asia, in river valleys and deltas. About 90% that area under rice is concentrated in Asia. India, China, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Japan, etc. are the major rice producing countries. तो राइस जहाँ पे ज़्यादा मीन्स चावल जहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है, तो लेकिन वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर हमको साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में, हम एशिया साउथ ईस्ट एशिया में हमको ज़्यादा दिखाई देता है. और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्री के नाम दिए गए कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जापान है, जहाँ सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग होता है. तो आप ये मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. Uneven distribution of wheat in the world, map 2. Another example is uneven distribution of the wheat producing area in the almost most of the countries in the world produce wheat nearly 80%. तो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड की जो ऑलमोस्ट जो कंट्री है वो 80% गेहूँ उगाती है या प्रोड्यूस करती है, व्हीट प्रोड्यूस करती है. आगे हम बात करते हैं हंगर, दैट डेफिनेशन एंड कॉजेज. कि इतना खाना होने के बाद भी लोग भूखे क्यों मरते हैं. द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज नॉट लाइक यूनिफॉर्म all over the world. As a result, we find that there are the areas having surplus food and also areas in the world having scarce food. कि हम जब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फूड की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका कहीं पे भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, ठीक, जिसकी वजह से हमें जो बोलते हैं ना कि सरप्लस फूड, और जो वर्ल्ड में हम बोलते हैं स्कार फूड हमें दिखाई देते हैं. तो व्हाट इज हंगर?
दैट हंगर इज रिलेटेड टू द फूड इनसिक्योरिटी, कि जहाँ आपको खाने की कमी महसूस हो उसको हम हंगर बोलते हैं. Olson and Halbert defines the hunger as the uneasy or painful sensation caused by the lack of food and the recurrent and involuntary lack of access to the food. तो हेल्सन और सॉरी हेल्बर और ऑल्सन के हिसाब से कि जो हम बोलते कि जो सेंसेस हम बोलते कि सिक्स सेंसेस होती है, तो उसमें से एक हमें यहाँ पे देखिए कि जो वेरी पेनफुल है कि जिसकी वजह से हमें फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को भूख सहन नहीं होती है, या हम बोलते कि अनईजी हो जाते हैं कि अगर उनको खाना टाइम पे ना मिले तो वो अनईजी हो जाते हैं. सो इट इज कॉल्ड हंगर. द डिसकम्फर्ट, इलनेस, वीकनेसेस और पेन कॉज बाय द प्रोलॉन्ग इनवॉल्यूंटरी लेक ऑफ फूड. तो हम क्या बोलते हैं कि बीमार होना, वीकनेस आ जाना, और कहीं हम बोलते हैं कि पेन होना बॉडी में, तो कभी कभी उसका जिम्मेदार होता है कि खाने की कमी. यूजुअली इट इज accompanied by the weakness and the strong desire to eat. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी उस व्यक्ति में हमें वीकनेस दिखाई देती है, और कभी कभी उसको ऐसा बहुत कुछ खाने का मन होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर. कि then FOO 2004 uses the following parameters to estimate the food deprivation. तो FAO ने जो 2004 में ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो रेडी किए हैं जिसकी वजह से फूड डिप्राइवेशन का हमें पता चलता है. द फर्स्ट पॉइंट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द फूड अवेलेबल पर पर्सन, कि एक व्यक्ति के हिसाब से कितने अमाउंट में फूड अवेलेबल होना चाहिए. दूसरा है द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू द फूड, कि हम बोलते हैं कि जो फूड हमको उपलब्ध है या हमें मिलता है तो उसका उसको इनइक्वालिटी मीन्स कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से हो जाए. द मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर एवरेज पर्सन. यस, तो एवरेज पर्सन को या पर पर्टिकुलर पर इंडिविजुअल को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको फूड मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रेडिमर, Olson, Green, Campbell, and Habit, the levels of hunger are the quantitative, qualitative, psychological and social in the scope. तो ये जो भी हम बोलते कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है या हम बोलते हैं जिसमें भी ये डेफिनेशन दिया है उनके हिसाब से जो हंगर है, जो हम बोलते हैं कि लेक ऑफ फूड है, तो किससे रिलेटेड है? क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और हम बोलते हैं कि सोशल स्कोप से रिलेटेड है. न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट एंड अनसुटेबल एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हंगर, कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन कभी कभी हम बहुत ही तला हुआ या स्वादिष्ट खाना खाते हैं लेकिन उसमें से हमें न्यूट्रिशन कितना मिलता है जो हमारी हंगर को मिटा सके. सो दीज आर so nutrition inadequate and unsuitable explain the qualitative aspect of the hunger. Then when there is a lack of choice and the feeling of deprivation, it is psychological, कि जहाँ पे कोई choice ही नहीं है, कि choice जैसा option ही नहीं है कि मुझे ये नहीं तो ये उपलब्ध है, ऐसा कोई choice नहीं, कुछ region में तो कुछ मिलता भी नहीं है, तो कभी कभी साइकोलॉजिकली मीन्स उसको हम होते कि उनको भूख से मना करते तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है. And when individual eating pattern is disrupted and food acquired in unacceptable manner, it is called sociological. कि जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी ईटिंग पैटर्न है अगर वो डिस्टर्ब हो गए, अगर वो डिस्टर्ब है और हमें जिस मात्रा में हम बोलते हैं कि हमको खाना मिलता है तो वो अगर न मिले तो क्या होगा, वो सोशोलॉजिकल होगा. समझ में. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हंगर एंड डिप्राइवेशन. जब आप हंगर और डिप्राइवेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, हंगर एंड डिप्राइवेशन एंड स्टार्वेशन इन द पास्ट दैट वर ड्यू टू द ड्रॉट्स एंड द great floods leading to the failure in the crop, causing miseries and deaths. Due to the lack of development means transportation and communication, there was heavy loss of population. Today, due to the development of transport and communication, relief is quickly reached to the area. However, there are physical and socio-political factors responsible for the poor people.
एंड मिजरीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। कि जब हम हंगर डिप्राइवेशन और स्टारवेशन की बात करते हैं तो सबसे जो नेचुरली जो रीज़न है तो उसमें आता है एक तो ड्रॉट है और फ्लड। कि जैसे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हम बोलते कि पूरा का पूरा जो हम बोलते कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा तितर बिखर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खाने की कमी महसूस होती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, पॉपुलेशन दूसरा एक हैवी पॉपुलेशन है। तो उस तक खाना पहुंचाने के लिए आपको शायद ये पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं फ्लड है तो जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि ऊपर हेलीकॉप्टर में से आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है उस एरिया में, तो सही में उसको उतना उस मात्रा में फूड मिलता है कि नहीं मिलता है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। द क्रॉप फेलियर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज फूड लीड्स टू द हंगर और अंडर नरिशमेंट इन द वर्ल्ड। तो क्या बताया गया है कि जैसे क्रॉप फेलियर है कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो जिसकी वजह से हंगर और डिप्राइवेशन और नरिशमेंट के लिए हम बोलते हैं ये ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हंगर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड। कि देश के हिसाब से या एरिया के हिसाब से लोगों का हंगर ये नापा गया है। द कॉजेज ऑफ हंगर, तो जब आप मैप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कॉजेज ऑफ हंगर मीन्स सबसे पहला पॉइंट है हार्वेस्ट फेलियर। ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप इन वन सीजन consecutive year is the main reason for hunger in the different areas of the world. In 1970s, this failure of the crop led to the hunger in the different parts of the world. The changes in the environmental and weather conditions may also lead to the failure of the crop. In 1980s, that in India, Pakistan, China and few other developing countries were affected due to fall in the crop production due to the reason harvest failure। जैसे आपने क्रॉप फेलियर, जैसे ये नाम आपने ये वर्ड सुना होगा, वो किसका पर्टिकुलर उसके लिए पीछे उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल कि जब 1970s की बात करते हैं तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि हंग्रीनेस ये एक टॉप हम बोलते हैं कि वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल उसका रीज़न था कि जैसे हम बोलते हैं कि वेदर कंडीशन जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो वो क्रॉप फेलियर के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कि कभी कभी आपने सुना होगा किसान भाइयों के मुँह से या किसान के मुँह से सुना होगा कि इस बार हमारी खेती बाड़ी नहीं हुई या हमने जो वो अनाज बोया था वो इस बार हमें फसलें उगाई थी वो ठीक से नहीं हुई। तो दैट इज़ द रीज़न। और यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल है कि जब 1980s की बात करते तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये डेवलपिंग कंट्री और बाकी के वहाँ पे भी फूड प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यही रीज़न जिम्मेदार थे। The next point is climate change. If there is a major change in the climate, then it leads to the lack of sufficient rainfall, drying of rivers, then people are wandering in the search of food and water. This happened in the Sahel region of Africa and Ethiopia, where due to drought conditions several years there was a loss of life in the large numbers। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जैसा क्लाइमेट चेंज होता है वैसे उसका इम्पैक्ट हम बोलते कि सफिशेंट रेनफॉल ना हो। कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो हमारे देश हम बोलते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो तो टिपिकली हम बोलते हैं कि बारिश पे डिपेंड रहते हैं या वर्षा पे डिपेंड रहते हैं, आधारित रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वो भी एक वजह हो सकती है फूड और वाटर के लिए। देन दिस हैपन इन द साहिल रीजन, अफ्रीका के साहिल रीजन में और इथियोपिया में ये सूखापन होने की वजह से सालों तक वहाँ पे कि सालों तक लोगों को मीन्स ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। और जिसकी वजह
कि बहुत लोग वहाँ पे मारे गए थे। ड्यूरिंग सच पीरियड्स एपिडेमिक ऑल्सो अफेक्ट एंड किल द लार्ज ऑफ नंबर, जैसे अभी आपको बताया कि ऐसे कोई एपिडेमिक्स आ जाते हैं, पीरियड्स आते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल डाइड। The next point is high cost of inputs. The modern agriculture demands costly hybrid seeds, fertilizers, pesticides, irrigation facilities, and machinery. The poor farmers in developing countries exhaust all their resources to avail a very few inputs, and if the result is negative, if the crop fails, then the farmer is doomed and the people starve for the days together. तो जब हम उसकी बात करते हैं कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक तो कॉस्टली हाइब्रिड सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इरिगेशन सिस्टम उसमें अच्छा होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए। लेकिन ये हम जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम बोलते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो उतना इतना इनपुट नहीं दे पाते। तो हाँ, हाँ, उतना इनपुट नहीं दे पाते, जिसकी वजह अगर उन्होंने ये इस्तेमाल भी कर दिया लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जब वो क्रॉप फेल हो गया तो क्या होता है, फार्मर फार्मर इज डूम। डूम मतलब द फार्मर इज डूम मीन्स हम बोलते हैं कि शायद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को भूखा रहना पड़ता है। The next point is failure of alternate source. We look towards oceans to solve our much required alternate sources of food. However, the fish catch has declined. The source of food is not guaranteed. तो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फेलियर ऑफ अल्टरनेट सोर्स, कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हम ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जब हम फूड की बात करते हैं तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इससे दो पार्ट दिखा देते हैं। तो सपोज जो हम वेजिटेशन में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू डिपेंड ऑन द ओशन, ओके, फूड के लिए। तो हम बोलते हैं कि फिश, जो हम बोलते हैं कि अभी फिश कैचिंग या फिशिंग भी जैसे एक जो ऑक्यूपेशन है वो हमें कम 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 दिखाई देता है, और सोर्स ऑफ द फूड इज़ नॉट गारंटेड कि हाँ यहाँ पे भी आपको ये सोर्स अवेलेबल होगा, ऐसे हम गारंटी नहीं दे सकते। Failure to control population. This is the even big problem today. In the remote areas, even today, girls get married at a very large age and bear the children at a young age. They also do not have access to the family planning measures. This leads to the birth of more children. When the economic condition is very poor, naturally the question arises as how to feed the children and how to buy the food। कि जब हम बोलते कि कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी समस्या है, कि जैसे लड़कियों को बहुत ही छोटी उम्र में जैसे शादी करवा दी जाती है और उनको छोटे उम्र में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग जैसे जो हम बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग उनके हिसाब से फैमिली प्लानिंग जो करना चाहिए उनको समझ में नहीं आता है, तो जिसकी वजह से बच्चों में बढ़ोतरी होती जाती है, बच्चे बढ़ते जाते हैं, और उनकी सपोज इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन अराइजेस होते हैं कि अभी बच्चों को किस तरह से पालना है, क्या खाना देना है। तो इससे बेटर हो कि जब आपका एज जब एक पर्टिकुलर एज लेवल पे आप पहुंच जाए तभी शादी करें, ना कि कम उम्र में बच्चों की शादी करवाई जाए, बच्चों की शादी करवाई जाए। Social taboos about diet. Sometimes various restrictions laid by the society lead to the undernourishment. Example, in some tribal communities, they do not give milk to the children. Hindus do not consume pork or beef. तो जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ ना कुछ हमारे हम बोलते हैं कि सोशल ट्रेडिशंस है या सोशल टैबूज है, कि जिसकी वजह से हम डाइट पे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बच्चों को दूध नहीं दिया जाता है,
या फॉर एग्जांपल हमारे हिंदूज में हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बीफ कंज्यूम नहीं करते हैं और पोक नहीं खाते। पोक मीन्स आई थिंक वहाँ क्या बोलेंगे, जैसे एक प्रकार का मांस। पोक मीन्स एक प्रकार का मांस, बीफ मीन्स गाय का मांस। और हम बोलते कि अ, हाँ, फ्रेश और सॉल्टेड फ्लेश ऑफ स्वाइन। और हम बोलते कि इस प्रकार का फूड हम हिंदूज में नहीं खाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिविल वॉर एंड मिस डिस्प्लेसमेंट रेफ्यूजीज। Miss displacement means refugees. The worst failed and affected countries Ethiopia, Mozambique, and others in Africa. Large number of the people migrated to the neighboring countries where they could not get the food. तो जो जैसे हम बोलते कि युद्ध वगैरह की जब सिचुएशन आ जाती है, वॉर कंडीशंस आ जाती है, वॉर होते में युद्ध होते हैं, उस टाइम बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज में जैसे इथोपिया है, मोजाम्बिक है, या अफ्रीका के कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ से इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा कि वहाँ पे जहाँ पे उनको फूड नहीं मिलता था। The production of the low calorie food and no food supply. In Africa, there is a hardly any supply of the food from outside. There is no green revolution such as, therefore they consume only corn, millet and sorghum. कि जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में बाहर से कोई भी फूड सोर्सेस या फूड रिसोर्सेज सप्लाई नहीं किया जाता है। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर उनकी वहाँ पे जो कुछ भी जो फसलें उगाई जाती है, फॉर एग्जांपल कॉर्न है, मिलेट है या sorghum, उनको वही खाना पड़ता है। द सॉइल इज फ्रेजाइल और डैमेज कि ड्यू टू over irrigation, over cultivation, overgrazing, the soil loses its fertility and nutrients, therefore can produce low calories food। कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि जितना ओवर इरिगेशन होता है, ओवर कल्टीवेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, तो जिसकी वजह से जमीन अपनी फर्टिलिटी खो देती है और वहाँ पे ज़्यादा कैलोरी वाला फूड हमको उस जमीन में नहीं मिल सकता। Then commercialization of agriculture. With the commercialization of agriculture in at least developed countries, more food is being sold to distant market rather than providing subsistence for local population. तो कॉमर्शलाइजेशन की वजह से कि फॉर एग्जांपल सिर्फ फूड बेचना मीन्स हम बोलते कि अनाज बेचना वही काम या वही मुनाफा है। तो कुछ कंट्रीज में कि जो फूड हम बोलते कि जो हम बोलते कि अनाज है, सिर्फ उसको कॉमर्शलाइजेशन के हिसाब से उसको देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसको बेचा जाए। कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल लोग जो लोग लोकलाइज पॉपुलेशन है या लोकलाइज पीपल है, उनको मिलने की वजह उनको मिलने से ज़्यादा बेटर है कि वो मार्केट में बेचा जाए। तो नॉन फूड क्रॉप्स हैव ग्रेटर मार्केट वैल्यू एंड आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रेडिशनल फूड क्रॉप। तो क्या होता है कि जो हम बोलते कि जो ये फूड होते हैं उसके में उसका मार्केट वैल्यू कैसा होता है, थोड़ा सा हम बोलते हैं कि कम होता है, ज़्यादा होता है। और इनकम इंक्रीजिंग बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स। तो ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स की वहाँ पे ट्रेडिशनल तरह से फूड क्रॉप्स किया जाए, ये उनकी डिमांड होती है। अनइवन प्रोडक्शन ऑफ द फूड, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द फूड but good number of the people are hungry due to the imbalance between the supply and the demand on the global and the local scale। कि हम बोलते हैं कि ऐसे देखा जाए तो फूड की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग भूखे मर रहे बिकॉज कि वहाँ पे जैसे सप्लाई और डिमांड जहाँ पे है उसका हम बोलते कि प्रोवाइड नहीं किया जाता। लो परचेजिंग कैपेसिटी डिप्राइव देम फ्रॉम डेवलपिंग एसेट टू द फोर। कि हम बोलते कि जिसके हम बोलते कि खाना किसी के लिए 2 टाइम का खाना मिलना उसके लिए भी एक लग्जरियस लाइफ होता है। तो यहाँ बोलते कि लो परचेसिंग कैपेसिटी डिफरेंस है फ्रॉम डेवलपिंग एसेट टू द फूड। तो वही बात यहाँ पे हो गई कि 2 टाइम का खाना मिलने एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन
Nutrition is the matter of quality of the food rather than the quantity of the food. जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्वांटिटी क्वांटिटी फूड का क्वांटिटी होने से क्या फ़ायदा है, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटेटिव होना चाहिए। इट डील्स विद द प्रॉपर बैलेंस इन द डाइट ऑफ द इंडिविजुअल। तो जैसे हमने अगला पॉइंट पढ़ा, पर इंडिविजुअल उसका न्यूट्रिएंट्स कितना है, उसको उतना फूड मिलना चाहिए, उतना कितना कैलोरीज है उसका उतना फूड मिलना चाहिए। तो उसका डाइट बैलेंस होता है। इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड we may find that there is a sufficient production of the food but balance of the food intake is missing। कि sufficient food दिया जाता है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि सफिशिएंट फूड तो मिलता है उनको, लेकिन वो लेते नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो थोड़े से देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, कॉर्न, व्हीट, पोटैटोज, then proteins include meat, eggs, fish, etc. And vitamins include leafy vegetables and fruits and fats and minerals। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें प्रॉपर डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी इतना इम्पोर्टेंट है, फिर प्रोटीन्स भी इतना इम्पोर्टेंट है, और न्यूट्रिएंट्स विटामिन भी उतना इम्पोर्टेंट है। वो तीनों का बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोगों को फूड तो मिलता है लेकिन वो ठीक से खाते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हमें वो थोड़े से हम बोलते कि होते हुए भी हम सब कुछ होते हुए भी उनके पास टाइम नहीं है उतना खाना। तो ये उनके फिर अपीयरेंस में उनको दिखाई देता है। द एवरेज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन ईटन पर डे इन द ब्रिटेन, केन्या, पेरू एंड इंडिया इज शोइंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जैसे प्रोटीन लिया जाता है तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, केन्या है, पेरू और इंडिया, इसके हिसाब से दिया जाता है। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा, फिर केरला में, फिर सॉरी केन्या में, फिर पेरू में और फिर इंडिया में। इफ द प्रोटीन इंटेक इज लो इट मे लीड टू द ब्रेन डैमेज। कि अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो वो ब्रेन डैमेज तक हमारे पहुंच जाते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज द फूड इज फेड टू द एनिमल्स बट देयर आर सम प्लेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज where sufficient food is available to feed the human beings। कि जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ पे फूड तो सफिशिएंट है, लेकिन उसको उसकी अवेलेबिलिटी या उसको ठीक से मिलता है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इन द इंटीरियर रिमोट एरिया समटाइम्स पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस to all nutrients। For example, the people living away from the coast do not get fish due to the lack of connectivity। कि यहाँ पे कुछ पार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे फिश ज़्यादा अवेलेबल होती है, और जो एरिया कोस्टल एरिया से दूर है तो वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी कम होने की वजह से वहाँ पे लोगों को फिश नहीं मिलता है। तो देर आर सम areas where vegetables have to be brought from long distance and therefore are not consumed daily। कि जैसे कई जगह पे फिश नहीं खाया जाता, वैसे कई जगह पे सब्जियां नहीं खाई जाती, क्योंकि उसको लाने में लॉन्ग डिस्टेंस में उसको लाने में देर हो जाती है और कभी कभी डेली कंज्यूम नहीं किया जाता है।